ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 5000 ਦੀ ਬਜਾਏ 50000 ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਬਣੋ, ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਬਣੋ ਸਭ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ 50000 ਲਾਈਕ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ? ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ انشاءاللہ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ضرور ضرور مزہ ਫਿਰ آئے گا جی۔ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈਕ سناؤ۔ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਸੁਣੋ ਫਿਰ। کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا۔ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا۔ بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو تم، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو تم۔ اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جزاک اللہ جی۔
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये दुरे अदन से एक नज़म है, जी 3-4 शेर सुनाता हूँ। जी जी। क्या इल्तिजा करूं के मुजस्सम दुआ हूँ मैं, सरता बपा सवाल हूँ, साइल नहीं हूँ मैं। मेरी खताएं सब तेरे गुफरान ने ढांप ली, अभी निगाह लुत्फ के काबिल नहीं हूँ मैं। मेरा कोई नहीं है ठिकाना तेरे सिवा, तेरे सिवा किसी के भी काबिल नहीं हूँ मैं। मिटती हुई खुदी ने पुकारा है ए खुदा, आजा के तेरी राह में हाइल नहीं हूँ मैं। क्या इल्तिजा करूं के मुजस्सम दुआ हूँ मैं, सरता बपा सवाल हूँ, साइल नहीं हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। ਹੋ ਲੋ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਕ ਦਾ ਭਾਈ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये अप एंड डाउन होता ही रहता है नाक का भाई। वही मुसलमान आके हजरत ईसा ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ कौम उम्मत काफ़ी बिगड़ चुकी है। कोई दुआवां करन कि हजरत ईसा ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ हाँ तो ਵਾਸਤੇ। वो साफ दिल जड़े ने ना करोड़ां च सन लभने ना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। हाँ ते इसलिए मेरा ख्याल है मायूसी गुनाह है सुनिया सी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। इंशाल्लाह बड़े लोगों ने समझा
ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ। ਮਸਲਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਯੈਸ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਲਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਇੱਕ ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੇਲਮ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਾঁਵ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਾ ਵੱਟੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੱਟੇ ਪਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਟੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੇਲਮ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰੇਗਾ ਦੀ ਸੇ ਨਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ। हाँ जी, ठीक है ठीक है। ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ- ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਫੈਲਾਈਏ। हाँ बिल्कुल ठीक, सही है। मैं ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਬੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖਲੀਫਾ ਰਾਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਜਾਮਿਆ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਮਨਾਜ਼ਰ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਬਸ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਕਾਲੋ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਸੋ ਬਸ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਬੈਅਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਸਗੇ ਮਾਮੂ ਸੀਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਲਾਂ ਲਾਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਝਾੜਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਲਾਣ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਨਵਾਬ ਅਮਤਲ ਹਫੀਜ਼ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਧ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਚਾਂਗ, ਬਸ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਨਰੀ, ਡਿਗਰੀ, ਲੂਤ ਕੇ, ਚਾਂਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਮਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਹਿਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਿਹਤ ਅੱਛਾ। ਤੰਦਰੁਸਤ।
ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ KHT ਭਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਮਤ ਬਰਕਤ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਬਸ ਥੁੱਕਣਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ जी अहमद भाई, जी लो भाई, हमने तो मजाक, हंसी मजाक करनी थी, वो कर लिया। अब आप शुरू हो जाए, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाह। जी अहमद भाई माइक ओपन करें। ਸਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। कोई गल नहीं, साडे ਤੇ रोजाना ਉਹ ਹੁੰਦੀ है। ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਲਦ ਹੈਗੀ 19 ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਬਤੁਲ ਨਿਬਵਾ। हाँ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਲਸਾ ਜੁਲਸਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੈ ਦਾਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਾਵਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। हजूर यानी कि जो हाफिज साहब से उन्होंने मुखातब कर दिया, हाफिज साहब को मालूम नहीं कि तकव्वला का हुक्म कतन और यकीन के मुतल्लक है, बस जैसा कि मैंने बार बार बयान कर दिया कि ये कलाम मैं सुनाता हूँ, ये कलाम जो मैं सुनाता हूँ ये कती और यकीनी तौर पर खुदा का कलाम है, जैसा कि कुरान और तरेहत खुदा का कलाम है, और मैं खुदा का ज़िली और बरूज़ी तौर पर नबी हूँ। यानी कि हजूर ने यानी कि इत्थे नबी दा लफ्ज़ अपने वास्ते जरा ना भी जरा यानी कि बयान फरमाया। और हर एक मुसलमान को और हर एक मुसलमान को दीनी अमूर में मेरी अताअत वाजिब है, और मसीह मौद मानना वाजिब है, और हर एक जिसको मेरी तबलीग पहुँच गई है गो वो मुसलमान है, मगर मुझे अपना हकम नहीं ठहराता, और ना मुझे मसीह मौद मानता है, और ना मेरी वही की तरफ और ना मेरी वही को खुदा की तरफ से जानता है, वो आसमान पर काबिल मुआखजा है। यानी कि थोड़ा भारत है कहते वाज़े तौर से विच मियां साहब आ गया ना इस तरह कर सर जी उत्थे ते हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने ये लिखा है कि मैं नबी हूँ, पर ये तो नहीं कहा, दावा तो नहीं किया ना उन्होंने, ये दावा थोड़ी है। इससे फर्क ये कि कहना कि मैं नबी हूं तो ना दावा करना, इससे तो मेरे नहीं ये दावा थोड़ी होता है सर। आपको फिर पता ही नहीं है दावा क्या होता है, माजरत के साथ। ये थोड़ी दावा है, इसे कौन कहता है कि ये दावा है? ਇਹ ਸਮਝਾਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਹਰੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤਹਰੀਰ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਦਲੀਲ ਦਿਓ ਕਿ ਦਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ। ਬੜੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸਤਦਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਦਲੀਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? जी भाई एक मिनट जरा, एक मिनट ठहर जाओ। देखो गल वे चलो वो तहरीर फिर दोबारा अहमद भाई करन दोहरा दियो, ते मेरा ख्याल है असीं अहमद भाई ने भी लै लैने, बड़े इस मामले च काफ़ी मतलब इलम रखते हैं। ते दोबारा अच्छा ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾ, ਦਾਵਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा एक सेकंड, ट्रू इस्लाम भाई भी है ने। अस्सलाम वालेकुम ट्रू इस्लाम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मियां जी? सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वालेकुम सलाम। और राशिद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जो है भाई, आप बताएं। अवॉइड करते हो मैंने साहब लगा लिया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस वो बिजी थोड़ा हूँ तो थोड़ा टाइमिंग से ही। नहीं ठीक है मेरे भाई, जिधर रहे खुश रहे, आई एम बिहाइंड यू, नो प्रॉब्लम। यस सर, आई एम विद यू।
कैसे हैं मियाँ जी, सेहत वगैरह आपकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह राशिद भाई, अल्लाह का फजल, दुआएं, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। जी जी, आप कंटिन्यू करें, कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग है जी। जी आप बात है। दोबारा तहरीर पढ़ दें, लेकिन ये है कि उन्होंने कहना है कि ये दावा कितने वे हाँ, दावा मैं यही उन्हें है ना कहना जो तो ये भाई मैं बताता हूँ ना, दावा ये है ना हाँ क्योंकि जी हाँ मुझे जी हाँ मुझे दसो। अब देखिए यहाँ पे हुजूर ने ये लिखा हो ना, और जो एक गलती का जाला है उसके अंदर हुजूर ने तहरीर फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे यानी किस नाम से पुकारा है ना। अब जब अल्लाह ताला उनको पुकार रहा है तो उसने अपना वो जो नबी जो भी हो नबी, दावा तो उसने फिर उसके बाद ही करना है ना कि अल्लाह ताला की तरफ से मैं खड़ा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा किया है ना। सर तो ये खुद गैर अहमदी ने एक दफा ये मैंने बात की थी, और गैर अहमदी ने मुझे कहा था ये तो ऐसे ही है जैसे माँ अपने पुत्र को शेर कह देती है, ऐसे वो शेर थोड़ी हो जाता है। वो तो कह दिया बस, ठीक है, उसको उसका हौसला देने के लिए, लेकिन उसमें उसको उनको नबी बनाया तो नहीं है ना फिर। नहीं, इस अगर उनके इस पैटर्न पे चलें तो फिर तो वो आप हजरत आदम तक पीछे को चलते जाएं तो वो तो फिर सारी साफी लेट जाती है जो ये भाई, ठीक है ना। इसमें तो फिर हाँ कोई जी भी यानी कि अपने आप को नहीं साबित कर सकेगा ना। दोबारा मुझे तो यही समझ आई है इसकी, देखें जी, इसलिए तो मैं सवाल लेके आया हूँ कि ये तो हुजूर ने यहाँ पे भी तहरीर फरमाया कि देखें गलती का मुझे जाला ने मुझे भी फरमाया। अहमद जी भाई, जी जी कोई मियां साहब, बंदा जी मियां साहब। आके ये बता दे कि 1,24,000 नबी या कम से कम 27 नबी जो कुरान पाक में है, किसी जगह किसी नबी ने आज खुद कोई दावा किया हो कि मैं नबी हूँ, वो मुझे दिखा जी दीजिएगा। बिल्कुल, वही ना, बिल्कुल, क्योंकि अगर तो हजरत मसीह इस्लाम ये कहते कि भी मैं नबी हूँ, मैं खुद को नबी कहता हूँ, तो वो तो हो गया ना हजूर का अपना दावा, क्योंकि हजूर तो ये है ना कि अल्लाह ताला ने मुझे यानी कि ये ओहदा मैं जी दिया कहता है हूँ या नौकुल ये भाई, तो मर्तबा फिर दिया है या अल्लाह ताला ने मुझे नबी खातमुन बनाया नबी, है ना। हाँ जी ठीक है, तो जी जी वला के रसूलुल्लाह ही वो खातमुन नबीयीन एदा की मतलब होया फिर। वो ऑडियो पे डाउनलोड की हुई थी, तो इसी जगह पे मैं रुका हुआ था, तो वो मैं अगर कहें तो 2-4 मिनट की सुना देता हूँ। आप खुद अगर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है मेरा ख्याल है। बराहीन अहमदिया में मैंने लिखा था कि मसीह ने मरियम आसमान से नाजिल होगा, मगर बाद में लिखा कि आने वाला मसीह नहीं। इस तनाकुज का भी यही सबब था। अगर कि खुदा ताला ने बराहीन अहमदिया में मेरा नाम ईसा रखा, और ये भी मुझे फरमाया कि तेरे गिरोह मुसलमानों का इस एतकाद पर जमा हुआ था कि हजरत ईसा आसमान पर से नाजिल होंगे, इसलिए मैंने खुदा की वही को जाहिर पर हमल करना न चाहा, बल्कि सोई की तावील की और अपना एतकाद वही रखा जो आप मुसलमानों का था, और इसको बराहीन अहमदिया में शाया किया। लेकिन बाद इसके बारे में बारिश की तरह वही नाजिल हुई कि वो मसीह मऊद जो आने वाला था तू ही है। इसी तरह अवाइल में मेरा यही अकीदा था कि मुझको मसीह ने मरियम से क्या निस्बत है, नबी है और खुदा के बुजुर्ग मुकर्रबीन में से है, और अगर कोई अमर मेरी फजीलत की निस्बत जाहिर होता तो मैं उसको जुज़ी फजीलत करार देता था, मगर बाद में जो खुदा ताला की वही बारिश की तरह मेरे पर नाजिल हुई उसने मुझे इस अकीदे पर कायम न रहने दिया, और सही तौर पर नबी का खिताब मुझे दिया गया, मगर इस तरह कि एक पहलू से नबी और एक पहलू से उम्मत। वही सफे जी इस हवाले से जाहिर है हाँ जी, मसीह मऊद जज़ाकल्लाह। अलैहिस्सलाम का मसीह ईसा अलैहिस्सलाम। जट साहब आ गया जवाब। उन्होंने साफ ब्लैक एंड वाइट लफ्ज़ है, कहता कि एक पहलू से हम थे एक पहलू से नबी हैं, गल खत्म। जिन्होंने मनना सी मान लिया, जिन्होंने नहीं मनना उन्होंने नहीं मनना, ना मनना। और जिन्होंने समझ आ गई ठीक है, जिन्होंने नहीं आई वो कोई मतलब कि सैप्टरां का सिरप तो है नहीं कि उन्होंने पिलाता जाए तो उन्होंने आ जाएगी। क्यों जी अहमद भाई या नाखुदा भाई या जानी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह अस्सलाम जज़ाकल्लाह मियां वालेकुम साहब, बहुत रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाक देता। हाँ चलो खुश रखे तो इंशाल्लाह मियां साहब कल मुलाकात होएगी रात ਨੂੰ। अल्लाह ख्याल रखे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जा साहब भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जानी भाई। जी मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम सब ਨੂੰ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और राशिद भाई आप सुनाए क्या हाल चाल है?
راشد جی بھائی جی الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ضیاء سب ٹھیک ٹھاک. اور نالج بھائی آئے تھے، کال ڈالی، آدھا منٹ بھی نہیں ڈالی، چلے گئے. دوبارہ میں انوائٹ ہی جی جی کرتا وہ رہا. کہہ رہے ہاں نہیں انہوں نے میسج بھی کیا تھا، شاید وہ کہہ رہے میں ڈرائیو کر رہا ہوں اچھا 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 اچھا. تو وہ شاید غلطی سے اوپر آئے ہیں یا کچھ میسج ان کا میں نے دیکھا تھا. جی جی میں بس سن رہا تھا میاں جی، میں تھوڑی شیئرنگ کر رہا تھا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں میاں جی سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان دعائیں. جی جی وہ بڑے دن ہو گئے میاں جی کی کچہری نہیں سنی تو میں نے بولا آج میں بھی ذرا بڑا وقت ہے اداس تو تھا. انشاءاللہ. کتنی دیر تک جسٹس کر پائیں گے جہاں پہ صرف اور صرف خالصتاً مذہب کی بات ہو رہی ہے اور مخالف پارٹیاں ہیں، اور ان مخالف پارٹیوں میں سے آپ کا اپنا بھی ایک بلیو ہے. جب تک دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کا احترام کرتی رہیں گی نا، ایک دوسرے کا، اس وقت تک میں نیوٹرل ہوں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں اور فالو بھی کر رہا ہوں. یہ سب سے لوئر کیٹیگری ہے ایک دوسرے کا، جو آمنے سامنے بیٹھے ہیں. یہ سب سے آخری سٹیپ ہے. جب تک وہ آپ یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو عزت و احترام سے مخاطب کرتے رہیں گے، میں خاموش ہوں. جی اچھا اب میاں صاحب یہاں پہ میرا یہ سوال ہے، یہ بتا، میں کوشش کر رہا ہوں ذرا تھوڑی سی نا اسکول آف تھاٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. اب بات یہ ہے کہ آپ کا ایک بلیو ہے، لائک ایگزامپل فور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک خود کا ایک بلیو ہے کہ جی ہماری مسلمات میں یہ بات شامل ہے کہ جی راشد جو ہے نا وہ یہاں پہ اگر یہاں پہ بیٹھ کے السلام علیہ الصلوۃ والسلام کہے گا تو میرے لیے میرے عقائد کو کمپرومائز کر کے وہ کہے گا، اور میں اس کو اگر الاؤ کرتا ہوں تو میرا عقیدہ کمپرومائز ہوتا ہے. نہیں کوئی نہیں، یہ تو جھوٹ پھر ہے. بھی اگر میں نہیں، اگر یہ آپ کا یہ عقیدہ ہو، میں نے اگزامپل اسی لیے کہا ہے، نہیں، یہ عقیدہ ہے ہی اور نہیں آپ نا. نیوٹرل. عقیدہ وہ ہے جو قرآن و حدیث سے، اسلام سے لینا ہے، رسول اللہ کی سنت سے لینا ہے. جو خود ساختہ عقیدہ ہاں ہے وہ تو عقیدہ کو ہم، نہیں نا، یہ خود ساختہ تو عقیدہ ہے. پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا. اگر کوئی بندہ جو بات کروا رہا ہے وہ یہ کہے کہ میرا یہی عقیدہ ہے، تو جب تک مجھے نہیں پتا تھا تب تک تو میں کرا رہا تھا سوری میں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا تو پھر کیونکہ اب یہ وہ میرا وہ عقیدہ ہاں ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اس نے اعلان کر دیا نا. جی اب جو ہاں جی بندہ کر دیا. علیہ الصلوۃ والسلام کہنے والا ہے نا، ہاں جی یہ بال اس کے کوٹ میں چلی گئی ہے کہ اب اس کو پتہ چل گیا نا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے. تو اب اس نے اس چیز کو فیس کر کے جانا ہے، بات کرنی ہے بغیر علیہ الصلوۃ والسلام کہے تو کر لے، اگر نہیں کرنی تو اپنے گھر بیٹھے. اگر اس نے مقصد ہے کہ سو کالڈ عقیدہ اپنا بنا ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بنا لیا اس نے. یہ ہاں ایسے جی ہی ہے. چلیں، یہ تو ہوگی بیہیویئر کی بات نا، کہ ان دا سینس کہ اب راشد بھائی کو پتہ چل گیا تو راشد بھائی پہ ہے کہ وہ اٹھ کے چلے جائیں یا پھر وہ نہیں بغیر جائیں علیہ نا، الصلوۃ والسلام کے. دیکھیں نا، اٹھ کے کیوں جائیں؟ جی پہلے نہیں آپ پتا جائیں کہ نا، ٹھیک ہے اس لائف پہ ان کے یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب جو یہ پرفارم کر رہا ہے براڈ کو، جو ہوسٹ ہے، اس کا یہ کہنا، پھر بھی یہ کہنا کہ میں نیوٹرل ہوں اور یہ براڈ لگتی رہے گی فری سپیچ کے اوپر، آپ آئیں اور پھر بھی آپ کو دعوت دیں، تو ان کا تو یہ فری سپیچ والا جو کانسیپٹ تھا وہ تو کمپرومائز ہو گیا نا. یہ نہیں میرے نہیں بیسیکلی نہیں بات نہیں ہے. نہیں 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 نہیں. ہاں جی اس نے آپ کو ایک رول اینڈ ریگولیشن دے دی ہیں کہ یہ آپ کی گفتگو کرنے کے قوانین ہیں.
जब तक आप उसके कवानीन को फॉलो कर रहे हैं और कोई बदतहजीबी नहीं हो रही तो ठीक है। हाँ, आप उसके कवानीन को फॉलो कर रहे हैं और फिर कोई मुखालिफ उसका नजायज़ फ़ायदा उठाता है तो फिर फ्री स्पीच वाला काबिल गिरफ्त है। ठीक है, लेकिन ठीक है फिर देखिए बात वही आ जाती है कि जी उसने एक मेंशन कर दी बात, कहता है कि जी फ्री स्पीच करनी है। मेरा सिर्फ ना लॉजिक फ्री स्पीच और जी न्यूट्रलिटी जी के ऊपर फोकस करे। जोया भाई माजरत, आप जो जी जी कह रहे हैं ना फ्री स्पीच, वो फ्री स्पीच तभी से खत्म हो गई जब आपने एक चीज को देखिए ना, एक बंदे ने बोला ये मशरूत प्लेटफॉर्म है, कर इसमें दिया। फ्रीडम ऑफ हाँ स्पीच है, हाँ, लेकिन हाँ, मशरूत लेकिन कर उसने दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच को शर्त रख दी, जैसे मियाँ जी ने बोला, पहले उसने रूल ले आउट कर दिया एंड यू एग्री ऑन दैट रूल, देन यू ऑन योर ओन। मियाँ जी की बात ठीक है, तो इसलिए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं कि जहाँ पे आपको रोका जाए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बैरियर भी होता है, ये नहीं कि आप खुले मुंह कुछ भी नहीं बोल नहीं दें, नहीं नहीं कि आप दूसरे के फिर भी काबरीन के बारे में गलत बयानी नहीं करेंगे, लेकिन पर्सनल बिलीफ पे आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपकी मर्जी होनी चाहिए। नहीं राशिद भाई, मतलब मैं अब देखे ना, ये कवानीन की बात है। हम किसी कंट्री में भी जाते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनके रूल एंड रेगुलेशन एक्सेप्ट करके जाते हैं ना, जी तो जी फिर जी हम उन पे अमल दरामद भी करते हैं। अब इस तरह एक मिसाल है, अब 100 कार्ड चाहे झूठा किदा ही उन्होंने एक बना लिया है, तो इधर मेरे पास मैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा लगा के कहूँ बैठ जाऊँ, और कोई आके इधर वो उस तरह के मतलब के डोगेटिव जो मामलात हैं वो शुरू कर दे, तो वो मैं इस पेज पे कि जी मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है तो वो ठीक है, जो मर्जी कहता रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, उन्होंने अब अगर किसी ने अपनी लाइफ पे ये कानून बना दिया कि ठीक है, आप की यहाँ तक लिमिट है, आप ये कह सकते हैं, और इसके बदले मैं आपको मकसद है कि ज़मानत देता हूँ कि आपके अकाबरीन को या बुज़ुर्गों को मेरा जो दूसरी तरह का बंदा कोई गलत बात नहीं करेगा, तो ये ठीक है। अच्छा, ठीक है मियाँ साहब, एक एक और सवाल वो मुझे बता दें। लेकिन बात अब आपने बिल्कुल, मैं तो अब जी जो जी गुफ्तगू करने वाला जा रहा है ना, ये उसकी नीयत पे जी डिपेंड है कि वो क्या करने जा रहा है। जी ठीक है। अ, अब मेरे आज पे ये सवाल, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, इस तरह इन कंट्रीज में रहते हैं। अब हमें थोड़े से इंटरनेशनल लॉज का भी पता है। तो पाकिस्तान के अंदर एक कानून है कि जमात अहमदिया का बंदा जब भी पाकिस्तान जाएगा तो वो बॉन्ड हो जाएगा कि वो कुरान पाक नहीं पढ़ सकता, या कोई भी इस्लामी प्रैक्टिस ऑन बोर्ड उस तरह फॉलो नहीं कर सकता। अगर करोगे तो आपके ऊपर इस तरह के वो लगेंगे। अ, अब मुझे पता है कि मैंने पाकिस्तान जाना है, तो मैंने इन लॉज को मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब जैसे ही मैं पाकिस्तान से बाहर निकलूंगा तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक मैं उसको कंडेम भी करूंगा, ठीक है। कि मैं ये कहूंगा कि इंटरनेशनल लॉ जो है, ये जो आपने लॉ बनाया हुआ है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त मैं लोगों की काउंसलिंग भी करने की कोशिश करूंगा, अपनी आवाज भी रेज करूंगा, सब कुछ करूंगा। अब ये जो फ्री स्पीच का पोस्टर लगाकर आप ये कहते हैं कि ये मशरूत है, ये शर्त है, ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में लॉ बनाया उसने भी लॉ बना दिया। लेकिन मैं जब इस बैरियर से बाहर निकल के उसको जज करूंगा तो मैं कहूंगा ये कौन सी फ्री स्पीच है कि जहां पे आप लोगों को बॉन्ड करके उनके अकायद उनको कहते हो कि जी तुम्हारा ये अकीदा है, तुम ये काम नहीं कर सकते, अपने अकायद छोड़ो और फिर आओ। तो ये तो कोई फ्री स्पीच ना हुई। फ्री स्पीच तो यह है कि सबको आजादी दो भाई, ठीक है, अपनी अपनी बात रखो। नहीं यार, ये जो ये भाई ये ना बच्चों वाली बात है। देखिए, उसने कोई ज़बरदस्ती, तो देखे ना पाकिस्तान में अगर एक लॉ है तो उसमें तो ज़बरदस्ती भी है ना, कि अगर आप उसकी वायलेशन करते हैं तो आपके लिए पनिशमेंट है। लेकिन अगर इधर जो सोशल मीडिया है, इधर कोई ऐसी बात करता है तो उसने आपको बाउंड तो नहीं ना किया कि आप ज़रूर उसके पास जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी टिकटॉक जो है वो 6 माह के लिए मुअत्तल कर दी जाएगी। इस चीज़ को भी तो सामने रखें ना। और इस तरह की एक जो बात आप करें, ये तो इस तरह के किसी प्लेटफार्म को हाइप देने वाली बात है। अगर उसको 10 बंदे जानते हैं तो आप 100 बंदों को उस पर तारफ़ करा रहे हैं। उसका तो जिक्र करना ही मकसद है कि असूल सोशल मीडिया नुकसानदेह है।
समझ रहे हैं बात को? जी जी ठीक है, नहीं मैं समझ आ गई। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, ये बड़ा एक डेलिकेट पॉइंट है। इसमें देखें अजीब सा कॉन्सेप्ट है, और हुजूर ने भी बोला था, अमीरुल मोमिनीन अय्यतुल्लाह बिन अजीज ने, उन्होंने कहा था कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप किसी के काबरीन के बारे में गुस्ताखी करने की इजाज़त दें या ये, तो ये चीज़ गलत है। ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ नुकसानदेह होगी। तो उसमें सडन लॉज होते हैं, हाँ, लेकिन ये एक बेसिक इंसानी हकूक़ होते हैं कि यार एक इंसान अपने जिन्हें वो पसंद करता है उनको वो मोहब्बत में कुछ भी कह सकता है। ये एक बेसिक इंसानी हकूक़ हैं जो हर इंसान को होने चाहिए, हर मुल्क में हैं, कि वो अपने जो बिलव वंस हैं उनको किसी नाम से भी पुकार सकता है इज्जत से, तो जो उसको अच्छा लगता है। दैट्स फ्रीडम ऑफ, ये एक बेसिक राइट है। जो इस राइट को रोकता है और वो इस राइट को अपने को इसको सैक्रिफाइस करके आगे बात करना चाह रहा है, मुझे दोनों पे दुख होगा ऑनेस्टली। मेरे लिए तो दोनों जहालियत की तरफ जा रहे हैं। एक तो पक्का जाहिल है जो किसी को कह रहा है कि भाई तुम ऐसे नहीं कह सकते अपने काबरीन को। तो हाँ, अगर आपके काबरीन के बारे में बोले तो आप रोक टोक करें, लेकिन अपने वाले को जो चाहे वो कहे भाई। तो ये जहालियत के निशान होते हैं, लोग करते हैं जहालियत। और अगर कोई अहमदी भी अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वो कर रहा है, तो वो भी मेरे ख्याल से, माई ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल से ये जहालियत है। यू आर हेडिंग दैट वे, आप शायद ना हो लेकिन आप उसी डायरेक्शन जा रहे हैं और इवेंचुअली आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन राशिद भाई देखिए, मोमन का यही होता ना कि जहाँ पे उसे ऐसा कोई लगबियात या ऐसे मकसद है कि गैर तामीरी और गैर महजब किस्म के मामलात से वास्ता पड़ता है, तो मोमन बजाय उसकी तशहीर करने के वहाँ से एराज करता है और बुराई को छुपाता है। ये गलत चीज़ है ना, माशरती तौर पे बुराई है। तो हमें तो इसको मकसद है कि इस पर पर्दापोशी करनी चाहिए, छुपाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो जिस दिन का ऐसा कोई सिलसिला शुरू है कहीं, तो हम सारे मिनासुल टिकटाक जमात उसकी तशहीर ही कर रहे हैं, बजाय उस पर अल्लाह की जी अल्लाह की सिफ्त सतारी की पैरवी करते हुए उस जगह पे ना जाना या उस जगह से एराज करना और उस जगह का जिक्र ही ना करना। असल काम तो ये था। जी। अब राशिद भाई और मियाँ साहब देखें, एक और बात है इसके अंदर ना। अब जैसे आई गेस राशिद भाई भी विल बी ऑन दैट पोजीशन एज वेल। तो अब यहाँ पे इसके बाद फिर एक दूसरी पिक्चर आती है, वो क्या कि वो उठ के जब भी हमारी ब्रॉड पे आते हैं तो वो अपना अकीदा कॉम्प्रोमाइज करके आते हैं, क्योंकि वो हमें नहीं रोक सकते हमारी ब्रॉड पे हमें अलैहिस्सलाम कहने से। तो उस वक्त अकीदा कहाँ गया? दैट्स द क्वेश्चन। देखिए, अब आपके अकीदे जिन मुल्कों में आप रहते हैं, क्या उनके साथ यकसा हैं या उनके अकीदे आपके बारे में यकसा हैं? जिन कंट्रियों में जो इस्लामी मुल्क पाकिस्तान से बाहर निकल के जो लोग नॉन इस्लामी मुल्कों में जाते हैं, तो क्या वो जो नॉन इस्लामी मुल्कों के अकीदे हैं वो इनको एक्सेप्ट करते हैं अपने रिलीजन अकायद के मुताबिक, या आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं ना? इसके मुताबिक इसके मकसद है के तहत भी आप एक इंसानी माशरती तकाज़ों के तहत इकट्ठे रह रहे हैं ना, अपने अकायद के इख्तलाफात के बावजूद। अच्छा मियाँ साहब, यहाँ पे ना दोनों सूरतों में मेरा अकीदा नहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा। मैंने तो उधर स्टैंड लिया कि मैंने नहीं रुकना भाई। आमीन, मेरा अकीदा है, मैंने कहना है, मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और मेरी ब्रॉड पे आए हैं तो मैंने तब भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो कॉम्प्रोमाइज एक पार्टी कर रही है। तो ठीक है ना। देखें, उन्होंने माशरती तौर पे मकसद है कि आप उन्होंने वो वाली चीज़ अपनाई है ना, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई जबर नहीं। ठीक है, आपका अकीदा है, लेकिन उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये ठीक है, आपको ओपन स्पेस देनी चाहिए, ना कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। नो 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 मियाँ साहब, ला इकराह फिद्दीन नहीं। वो बात यह है कि सेम ही बंदा उस वक्त ला इकराह फिद्दीन को एक साइड पे कर रहा है, और जब मेरी ब्रॉड पे आया तो उसने फिर ले लिया। ये बंदा जो टिकटॉक पे अगर ना आता तो यार हम क्या करते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आई।
कसम है ਅਸੀਂ ਜੀ ਚਲੇ ਨਹੀਂ मेरी ਮੈਂ यार सुन लो, जिस बंदे ने 20 साल में कोई पॉपुलैरिटी करनी थी ना, हमारे हाथ वो बस आ जाए, हम उड़ा के रख देते उसे। अच्छा ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ मैं तो असूल की बुनियाद में बात कर रहा था यार। वो तो अलहदा गल है, मैंने तो कभी बात नहीं की भाईजान, आपने मुझे यार कभी सुना है उनके आपको बारे पता में है, बात जितनी पॉपुलैरिटी हमने इन लोगों को दे दी है ना, ये 5-5 साल लगे रहते ना, 10-10 साल लगे रहते, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं होनी थी इनकी। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। और राशिद भाई और मामला गर्म हो गया, कुट पै गई है, मैं चुप कर रहा। सो ठीक है मियाँ जी, वो तो आपकी बात ठीक है, वो तो हम समझ ही रहे हैं। हम देखिए हर अक्लमंद इंसान जो है ना वो चीजों को समझता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमारे पिछले 3 साल अकीदा सारी उम्र रखे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने उसे अपना मैसेज दे दिया। वो आया, उसने अपना मुझे सुनाई, मैंने उसे अपनी 4 सुनाई। आई फील लाइक कि मेरे लिए वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और उसके बाद वो जो है अंसर भाई आते हैं, वो कुछ सवाल जवाब उनसे किए जाते हैं, तो मैं उनसे सीखता हूँ। वरना इसलिए मैं बाकी किसी लाइव पे ज़्यादातर बैठता ही नहीं हूँ ये जी, मैं इसलिए कट ऑफ हो गया हूँ। उसमें मॉर्निंग में खुद ही अपना टाइम दे देता हूँ जितना तफीक हो। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अपने काम से काम रखें, आपको अल्लाह ने वक़्त दिया है, टाइम दिया है, फिर अल्लाह ने आगे आपको एक प्लेटफार्म दे दिया, उस पर अल्लाह रसूल का और उसके इमाम महदी का जिक्र करें, लोगों तक अपना मैसेज पहुँचाएँ, बजाय इधर उधर के लोगों की बात करने के। और कोई भी अगर आपकी लाइफ पे इस तरह आए तो उसे कहे भाई इधर कोई जमात की बात करें, हज़रत मसीह मौद की कोई बात करें, कोई जमात के जो बुजुर्गान गुजरे हैं उनकी बात करें। लो जी मियाँ साहब और राशिद भाई, मैं तो इजाजत चाहने लगा हूँ, मुझे इजाजत दी जाए, मैं इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा मियाँ साहब, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ वैसे फिर, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। हाँ मैं अभी फिर वो सिग्नल भी चले जाएंगे ना, फायदा ही नहीं है, मैं आता हूँ वापस। जी जी जो है भाई, बस अब देखें, मैं सब समझता हूँ, मैं भी टिकटॉक को समझ गया। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात समझना चाहिए, इसमें हाँ जी, कोशिश फिर आपको नहीं करते जाना रहना चाहिए। हाँ हाँ तो फिर जी, आपको नहीं जाना चाहिए ना। ये तो मैं कह रहा किधर? मैं तो नहीं जाता कहीं भी कहीं भी। जी जी नहीं, मैं अच्छा वैसे अभी मजाक कर रहा हूँ। अभी हाँ नहीं जी, अभी मैं कर रहा हूँ। हाँ नहीं जी, नहीं, मैं मैं पहुंच गया हूँ घर। मियाँ साहब को पता ही है मेरा टाइम है, और मैं बैठा हुआ था बेसिकली, अब तो 5 सवा 5 हो गए हैं। I supposed to be sleeping by 6:30, right? So I'm a little bit running late today. So मेरे पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, जाके शावर लूंगा, खाना खाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा और फिर मेरा टाइम हो जाएगा। ठीक है फिर मियाँ साहब, आप ठीक है कुछ जी, थोड़ी सी अल्लाह नज़म शज़म लाओ, फिर कुछ देखो क्या करना है, फिर मैं आता हूँ, मैं घर जाके आता हूँ वापस। कोई मसला नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जी मियाँ जी, सभी दोस्त चले गए। कोई बात नहीं, सब ने चले जाना है। जी जी ये भी बात सही है। कोई और शगा, कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, कल को और कोई और होगा, हमसे बेहतर होगा, उसके ये तो जिंदगी का। I mean, I don't know, थोड़ी सिंपलिसिटी लोगों में कम होती जा रही है। आई फील लाइक कि बहुत सारे लोग जो है ना अपने ही कई दफ़ा मुझे बड़ा डिसअपॉइंट करते हैं, लेकिन चलें, अल्लाह हिदायत दे सबको। कमज़ोरियाँ सब में होती है, मुझ में भी बहुत सारी है, ढेर है, लेकिन आई डोंट नो मियाँ जी, कुछ चीज़ों पे इंसान को थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लोग करते। इस असल में ना मसला ये होता है कि वो आपके डबल आवाज़ हुई थी। असल में ना शुरू में ना वो गलत तरीक पे हमारा ये जो ना
सोशल मीडिया चल पड़ा है। अब इस पर क्या करना चाहिए? इन डायरेक्शनों पे जाना नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए था। हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए था कि कौन क्या है, क्या कर रहा है, किस तरफ, तो बस अपनी बात करते और आगे चलते जाते। लेकिन जब जितनी हमारी लाइफ है ना इस सोशल मीडिया पे, इस लाइफ का हमने तकरीबन 80% जो टाइम है ना वो कुछ लोगों के लिए मुख्तस कर दिया है, बस उनका जिक्र अस्कार चलता है, जो कि बहुत वेरी बैड, नहीं होना चाहिए था ऐसा। ये सेहतमंद इकदाम नहीं था। जी जी मियाँ जी, लोगों को बिल्कुल बात आपकी ठीक है, तो जो हमारा टास्क है उस पर हम फोकस नहीं, हम ज्यादा फोकस हैं कि हमारा दुश्मन या जो हमारे मुखालिफिन है वो क्या कर रहे हैं, हाँ रादर देन के हमें अपने काम पे फोकस रखना चाहिए जो वैसे उनकी मौत है। बिल्कुल। तो कृष्ण भाई आए हैं जी। कृष्ण भाई वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। आज इल्म के होने इजाफा होया है, एक चीज है फुल स्क्रीन बनी कि नहीं हुण? 10-12 कल आईयां राती, कल मैनू गला कढण वालियां दी